नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले त्योहारों के मौसम में अपनी खूबसूरती को चार चांद लगाने आज ही चले आइए डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो। यहाँ आपको टॉप ब्रांड की ब्यूटी प्रोडक्ट्स तथा एक्सपर्ट ब्यूटिशियंस द्वारा केराटिन ट्रीटमेंट, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, नेल एक्सटेंशन, हाइड्रा फेशियल, डायमंड रेडिएंट ग्लोब, बबल गम हैंड एंड फुट स्पा, ग्लास ग्लो फेशियल सहित और भी कई प्रकार की सर्विसेज दी जाएंगी, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। इसके अलावा विशेष पूजा ऑफर के तहत हम ग्लो फेशियल, गोल्ड फेशियल, O3+ फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कटिंग, क्लीनअप, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, हेयर स्पा, क्लीनअप, हेयर कलर, GK केराटिन ट्रीटमेंट की सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। ये विशेष पूजा ऑफर 9 अक्टूबर तक वैलिड है, तो फिर देर क्यों, आज ही चले आइए डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो, पद्मा टावर, शारदापल्ली, स्ट्रीट नंबर 6, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8250808569 तथा 9832723757। केंद्रीय जांच एजेंसी NIA और STF की टीम ने संयुक्त रूप से आज कुल्टी थाना क्षेत्र के डीसरगढ़ गांव में किराए के मकान में रहने वाली एक मानव अधिकार संगठन से जुड़ी कर्मी सुदीप्ता पाल के घर पर छापेमारी की। इस बारे में सुदीप्ता पाल ने बताया कि आज सुबह 6 बजे से पहले ही NIA और STF की टीम उनके घर पर आई और सर्च वारंट दिखाया। उन्होंने बताया कि रांची के एक मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने NIA को सुदीप्ता पाल के घर की तलाशी लेने का अधिकार दिया था। वहीं सर्च वारंट लेकर NIA के अधिकारी उनके घर आए थे। सुदीप्ता पाल ने बताया कि तलाशी के नाम पर NIA के अधिकारियों ने उनके घर में रखे सामानों को तहस नहस कर दिया, उनके घर का सामान पूरी तरह से बिखरा दिया। इसके अलावा उनका एक एंड्रॉयड फ़ोन और हार्ड डिस्क जब्त कर लिया। उन्होंने कहा कि उनके पास एक ही कंप्यूटर है जिससे वो मानवाधिकार संगठन से जुड़े कार्य करती हैं। हार्ड डिस्क ले जाने से उनको अपने कार्य करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सुदीप्ता पाल ने दावा किया कि जिस मामले को लेकर आज उनके घर में तलाशी ली गई, वो मामला पूरी तरह से झूठा है। तलाशी के दौरान घटनास्थल पर कुल्टी थाने की पुलिस मौजूद थी। আমাদের বাড়িতে একজন ভাড়াটিয়া থাকতো, মানবাধিকারিতে ও কাজ করতো। মোটামুটি দীর্ঘ 3 বছর প্লাস আছে আমাদের বাড়িতে, ঠিক আছে। তো আজকে হঠাৎ এরকম ইউনিয়নের সাথে একটা কাজ করতো, মানবাধিকারী কিছু একটা, ঠিক আছে, যাতে কাজটা চলে যেত, তাদের শ্রমিক আন্দোলন বা এসব করতো ওরা। সুদীপ্তা পাল। আজকে আমি সকালে উঠে দেখি বসে এসছে, তারপরে আগে তো কিছু জানতাম না, এসে পরে ওরা ওনাকে চাইছিল, উনি বাড়িতেই ছিলেন আজকে। তো ভেতরে স্যাররা আছে, হ্যাঁ, এখন ভেতরে তদন্ত চলছে। ওদের এখন কোনো কিছু ওরা জানাচ্ছে না, ঠিক আছে, পরিষ্কারভাবে যা করেছে, সার্চ করেছে, ওর কম্পিউটার, এই সকল ডিভাইসগুলো, যে হার্ড ডিস্কগুলো কভার করেছে, কিছু নথি বার করেছে, কাগজপত্র কিছু পেয়েছে, ঠিক আছে। তার থেকে আর বেশি আমি কিছু জানি না আপাতত। আমার কাকুর বাড়ি। আমার নাম হচ্ছে সুভাষ ভান্ডারী। যখন উঠিনি তখন আমাকে ডেকে আমার ঘরে হঠাৎ করেই তারা বলছে ইনভেস্টিগেশনের অর্ডারে আমরা কাগজ নিয়ে এসেছি এবং সার্চ ওয়ারেন্ট ওনারা দেখালো। এবং সার্চ ওয়ারেন্টে আমি শুধুই যেটা বোঝা গেল সেটা হচ্ছে যে একটা রাঁচির কেসে তাদেরকে, রাঁচির যিনি ইনভেস্টিগেশন অফিসার, তাদেরকে NIA-কে আমার ঘর সার্চ করার পাওয়ার দিয়েছে। সেটার ভিত্তিতে ওনারা আমার ঘর সার্চ করার নামে ঘর তন্নাস্তি করেছে পুরো, এবং সমস্ত কিছু ওলটপালট করে তারা, যেটা সবথেকে সমস্যা হয়েছে, আমার যেটা অ্যান্ড্রয়েড ফোন নিয়ে গেছেন, হার্ড ডিস্কটা নিয়ে গেছেন, যেটা আমার একমাত্র কম্পিউটার, যেটাতে আমরা কাজ করি। আমাদের আজকেও কিছু চিঠি লেখার কথা, এই সামনে 10 তারিখে আমাদের হিয়ারিং আছে RLC-তে, সেগুলো কোনোটাই আমরা করতে পারবো না। আমরা পত্রিকা বার করি, পত্রিকার লেখাপত্রগুলো রেডি করার কথা, এই বড় একটা ক্ষতি করে দিয়ে চলে গেলেন। কারণ ওনাদেরকে বললাম যে আপনারা হার্ড ডিস্কটা নিয়ে আসা উচিত ছিল। হয় হার্ড ডিস্কটা নিতে গেলে আমাকে তো দিতে হবে, এটা তো ডেমোক্রেটিক জায়গা। ইচ্ছে করলো আমি নিয়ে চলে গেলাম, এটা তো হয় না, আমার কাজটা তো হ্যাম্পার হবে। তো ওনারা বলছেন হ্যাঁ সেটা আমরা বুঝতে পারিনি। না বুঝতে পারার তো কিছু নেই। এবং আমরা বললাম যে হার্ড ডিস্ক ফেরত পেতে এখন 6 মাস লাগবে আমার। এবং সম্পূর্ণ মিথ্যে কেস সাজিয়ে এই ইনভেস্টিগেশনটা হয়েছে, সমস্ত মিথ্যে কেস সাজানো হয়েছে।
ওরা 6টার আগে এসেছিলো, 6টা বাজতে 5। 4 ঘন্টা ধরে এটা চলেছে, খুবই ব্যাপার। आसनसोल के काकरसोल में चलती पूल कार में आग लग गई। इस घटना से छात्र बाल बाल बच गए। मंगलवार सुबह हुई इस घटना के बारे में जानकारी मिली कि एक पूल कार छात्रों को नियामतपुर से आसनसोल के एक निजी स्कूल ले जा रही थी। काकरसोल इलाके में अचानक पूल कार से धुआं निकलने लगा। चालक ने गाड़ी रोकी और छात्रों को उतार दिया। कुछ देर बाद पूल कार में आग लग गई। मौके पर कुल्टी थाने की नियामतपुर चौकी की पुलिस पहुंच गई। सर हम भारत पाम में 7:30 में भारत पाम में खड़े थे। भारत पाम रोड के पास में खड़े थे। उसके बाद हमने देखा यहाँ गाड़ी जल रहा है। कोई आदमी बोला वहाँ कुछ दुर्घटना हुआ। हम दौड़ के आया सर, दौड़ के आया, देखा वहाँ से आने में मेरा 4 मिनट लगा सर। तो देखा गाड़ी जल रहा है, गाड़ी जल रहा है। उसके बाद देखा, बाद में सुना ये 8 बच्चा और ड्राइवर साहब गैरेज के अंदर में थे। बच्चा क्या स्कूल बच्चे थे? हाँ जी सर, स्कूल बच्चा। कौन से स्कूल का था पता है आपको? जी सर, थोड़ा इतना ये सर इंग्लिश मीडियम स्कूल है, 7 मोड़ यहाँ हो सकता है। हम फाइनल पता नहीं है। जी सर। ठीक है, ड्राइवर कहाँ है, बच्चा कहाँ है? 8 बच्चा, ड्राइवर का हम दूसरा गाड़ी में भेज दिया सर। भेज दिया। बड़ा वो परमिशन दिया, उसके बाद भेज दिया। उनका जो ड्राइवर का मालूम चीज़ का बच्चा है उसका घर पहुंचा दिया, उसका ड्राइवर को पहुंचा दिया। उसका दूसरा एक गाड़ी है उसको भेज दिया, बड़ा परमिशन दिया। उसके बाद दूसरा गाड़ी आया 4 चक्का टाटा इंडिगो बोले, उसको 8 बच्चा और ड्राइवर को भेज दिया। बड़ा वो परमिशन दिया, उसको घर में पहुंचा दिया, पहुंच गया। इसका गाड़ी चल रहा था। उसके बाद 7:35 में हम आया। 7:35 में 8 बच्चा और ड्राइवर साहब गाड़ी में था 7:35 में। उसके बाद जो हुआ दुर्घटना, उसको बड़ा वो गाड़ी 7:36 में आया थाना से। बड़ा वो आया 7:36 मिनट। अभी ड्राइवर और बच्चे सेफ है तो? हाँ जी सर, जी सर, अच्छा है सर। अब इंक्वायरी कर सकते हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद दत्त है जी सर। आसनसोल नगर निगम के 23 नंबर वार्ड के निवासियों ने आज आसनसोल नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की और पानी की कमी की समस्या को लेकर उनसे इसके निराकरण का अनुरोध किया। इस बारे में 23 नंबर वार्ड के निवासियों ने कहा कि पिछले 4 महीनों से उनके इलाके में पानी की समस्या है। कई बार स्थानीय पार्षद और नगर निगम से गुहार लगाई गई है, लेकिन पार्षद का कहना है कि उन्होंने उनकी समस्याओं के बारे में नगर निगम को बता दिया है, नगर निगम की तरफ से ही कोई कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में आज वो मेयर से मिलने आई हैं, मेयर से अनुरोध करने आई हैं कि उनके इलाके में पानी की समस्या को दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि पानी नहीं रहने से लोगों को भारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। वहीं मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि आज 23 नंबर वार्ड की कुछ महिलाएं उनसे मिलने आई थीं, उनके इलाके में पानी की समस्या है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरों को निर्देश दे दिया गया है कि कल्याणपुर सैटेलाइट टाउनशिप से उनके इलाके में पानी का कनेक्शन किया जाएगा, लेकिन उसके लिए 1 से 1.5 महीना समय लगेगा। तब तक उस इलाके में पानी की समस्या को दूर करने के लिए वैकल्पिक इंतज़ाम किया जाएगा। कुइया का पानी कोई नहीं देना चाह रहा है, जो किमाड़ी बंद कर ले रहा है कि नहीं पानी अब नहीं देंगे, आप लोग को दे देंगे तो हम लोग क्या देंगे। नल का पानी आ ही नहीं रहा है, बीमार हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बस इसी वजह से हम लोग आए भैया। कितना दिन से पानी नहीं मिला? 4 महीने से नहीं आ रहा है पानी। इस बीच में 4 महीने से पानी नहीं आ रहा है। इस बीच में मेयर साहब से, काउंसलर से मिले? हाँ मिले, बहुत बार गया बहुत गया, वो कुछ नहीं बता रहा है। हाँ कुछ ऑप्शन, कुछ दिन पहले तो आप लोग रास्ता भी जी हाँ, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ। आप लोग रास्ता रोक के थे, कोई गया था? हाँ गया था, काउंसलर आया रहा है। क्या बोले? पुलिस मोटर का काम हो रहा है। हाँ बोलता है पैर में कचरा जम गया है, पानी नहीं आ रहा है, टाइम लगेगा। नाम क्या है आपका? नसीमा खातून। किस लिए आज यहाँ आप लोग? हम लोग पानी के दिक्कत से आए हैं। हम लोग को पानी का प्रॉब्लम हो रहा है। 4 महीने से हम लोग को पानी नहीं आ रहा, बहुत दिक्कत है। श्रीनगर काउंसलर भी बोल दिया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए हम लोग कॉर्पोरेशन के पास आए हैं, मेयर के पास। असुविधा हो रहा है? असुविधा पानी आ ही नहीं रहा, 23 नंबर वार्ड में पानी आ ही नहीं रहा। कम से कम 1 घंटे के लिए भी आ जाएगा तो हम लोग को बहुत मेहरबानी होगा। इसलिए रिक्वेस्ट करने आए हम लोग इतने सबको मिलके कि हम लोग को प्लीज़ पानी का व्यवस्था कर दीजिए। पानी नल में नहीं आ रहा है तो कैसे काम चल रहा है? काम बहुत दिक्कत से, जैसे कि हम लोग जा रहे कहीं पर जा रहे, कुआं से पानी ला रहे, कुआं का पानी भी खत्म हो जा रहा, तालाब जा रहे, तालाब में भी वैसा ही दिक्कत है। मतलब बहुत दिक्कत हो रहा। हम लोग क्या है प्रॉब्लम लेके क्यों आए, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है।
पानी काउंसलर के पास गए थे क्या बोल रहे? वो बोला हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं वहाँ पर, वो बोलेंगे तभी ना, यही बोल रहा वो भी वही बात बोल रहा है। वो भी तो उसी वार्ड में रहती है। हाँ, उनको पानी मिल रहा है। उनको पानी मिलता होगा, हम लोग ये हम लोग नहीं जानते उन लोग को मिलता होगा, वो लोग को मिलता होगा, हम लोग को नहीं मिल रहा, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान परवीन है। ওদের রাইজিং মিল থেকে ওদের লাইন ছিল, মানে রাইজিং মিল থেকে ওরা নিয়েছে নিজেরা, ফলে জলের অসুবিধা হচ্ছিল ওদের, এবং আমাদেরও ট্যাঙ্কের জল উঠাতে অসুবিধা হচ্ছিল। ফলে কয়েকদিন থেকে ওরা জল পাচ্ছে না, কম পাচ্ছে, হয়তো 7 দিন 8 দিন পর একদিন জল পাচ্ছিল রাইজিং। তো সেই জন্য এসেছিল, আমরা সাথে সাথে ইঞ্জিনিয়ারকে নির্দেশ দিয়েছি যে আপাতত এখন ওদেরকে ট্যাঙ্কার দিক এবং রাইজিংটা একটু বেশি চালিয়ে দিক, যাতে ওদের জলটা হয়ে যায়। পুজো আছে, ছট পুজো আছে, সেগুলো তার মধ্যে 1 মাস। কালকে ইঞ্জিনিয়াররা যে কেএসটিপি থেকে যে লাইনটা ওদের পাড়াতে ঢুকিয়ে দেবো, আমরা ডাইরেক্ট লাইন ওদের পাড়াতে ঢুকাবো, এবং সেটা তো হয়তো 1 মাস 1.5 মাসের মতো টাইম লাগবে, তার মধ্যে আমরা করে দেবো কাজ। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। आज सिंघारन बचाओ और विज्ञान मंच द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर नदी को बचाने की मांग पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कुछ कारखाना मालिकों ने नदी को घेर लिया है, जिससे कि नदी की स्वाभाविक गति रुक गई है। उनकी मांग थी कि उनको तुरंत नदी को स्वाभाविक स्वरूप में लौटाना होगा, जिससे कि इस नदी को बचाया जा सके। इसी मुद्दे पर आज रोड जाम किया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासन को भी इस बारे में जागरूक होने की ज़रूरत है और प्रशासन के कानों तक स्थानीय लोगों की आवाज़ को पहुंचाने के लिए ही आज ये पथावरोध किया गया है। কমিটির একটা ডাক দিয়েছিল আমাদের এই এলাকায় সিঙ্গারন নদী দীর্ঘদিন ধরে আমাদের এই সিঙ্গারন নদীকে বাঁচাবার উপলক্ষ করে বিভিন্ন স্তরে আমরা চিঠিচাপাটি করা হয়, কিন্তু তাদের ভূমিকা ভালো নয়। সেই করে চিঠিচাপাটি অনলাইন সিস্টেম, কাগজ কলম পর্যন্তই, কিন্তু বাস্তবে তাদের কোনো কাজে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই সিঙ্গারন বাজার এবং বিজ্ঞান মঞ্চ আমাদেরকে সহযোগিতা করে তারা আমাদের সঙ্গে সাথ দিয়েছে যে এইভাবে হবে না, পথ অবরোধ করে যেখানে যা আছে সেখানে এইসব করে আমাদেরকে নদী বাঁচাও কমিটি নদী বাঁচাতে হবে। প্রশাসনকে জাগ্রত করতে হবে, প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে হবে। যেসব কারখানার মালিকরা যে নদীকে সংকুচিত করেছে, নিজেদের
দেওয়াল কংক্রিটে ঘিরেছে তাদেরকে উঠিয়ে নিতে হবে, নদীকে নদীর মতন পরিবেশ করতে হবে, দু সাইডের পাড়ে গাছপালা লাগিয়ে সেই রকম পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এই হচ্ছে আমাদের নদী বাঁচাও কমিটির দাবি, আমাদেরও দাবি, আমাদের এলাকারই দাবি। সেই দাবির আজকে রূপরেখা হিসাবে আজকে তফসির এই NHS এর রাস্তার উপরে আমরা কিছুক্ষণের জন্য বিক্ষোভ সভা করলাম। আগামী দিনে আমাদের বিরক্ত আরও হবে। এই বলে পরিচয় কি? পরিচয় আমার নাম হচ্ছে ধীরাজলাল হাজরা, আমি এই এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক। আমাদের দীর্ঘ 1 বছর ধরে এই সিঙ্গারন নদী নামক শব্দটি নদী বাঁচাও কমিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। তারপর থেকে আমাদের আন্দোলন শুরু হয়, যে কোনো মূল্যে এই নদীটাকে আমাদেরকে ফিরিয়ে দিতে হবে। আমরা জানি, যেদিন থেকে সামান্য পড়াশোনা শিখেছি সেদিন থেকে আমরা জানি জল হচ্ছে জীবন, নদী হচ্ছে সভ্যতা। কিন্তু বড় হয়ে কি আমরা দেখতে পাচ্ছি, সভ্যতা হারিয়ে যাচ্ছে। কিছু মানুষের কুলুষিত ব্যবহারের জন্য, টাকার জন্য, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জন্য নদী, পুকুর, ঘাট সব কিছুকে গিলে খাচ্ছে, পাহাড় গিলে খাচ্ছে। তারই অঙ্গ হিসাবে আমরা এই সিঙ্গারন নদীকে আমরা লড়াইয়ের জন্য আমরা বেছে নিয়েছিলাম। আপনারা জানেন যে পরিবেশ, ক্লাইমেট যেভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, বর্ষার সময় বর্ষা হচ্ছে না, নদীর টাইমে জল আসছে না, চাষবাসযোগ্য সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যাচ্ছে এবং প্রায় পশ্চিমবঙ্গের 7 লক্ষ যারা মাছের সঙ্গে যুক্ত, আজকে তাদের জীবন জীবিকার উপর আঘাত আসছে। এবং আমরা সিঙ্গারন নদী পারে যে সকল আদিবাসী মানুষ ও আদিবাসী মানুষ, প্রায় 10,000 মানুষ, তাদেরকে কুক্ষিগত করে তার দেওয়াল দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কে দিয়েছে? কারখানার মালিকদের অধিকার। 10টা কারখানার মালিকের অধিকার, কোনো অধিকার নেই 10,000 মানুষের নীতি নির্ধারণ করার। আমরা যেমন কারখানা চাই, আমরা নদী চাই। নদীর জন্য আমরা লড়াই আন্দোলন শুরু করেছি এবং লড়তে থাকবো। আমাদের নদী যেমন ছিল সেরকম আমাদের নদীকে ফিরিয়ে দিতে হবে। তারই অঙ্গ হিসাবে আজকে এখানে সিঙ্গারন নদী বাঁচাও কমিটির পক্ষ থেকে আজকে এখানে আমরা পথসভার একটা বিক্ষোভ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় হচ্ছে নদী বাঁচাও কমিটির কনভেনর অজিত कुमार कोरा। प्लेयर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज आसनसोल के रविंद्र भवन में खेल कूद पर आधारित एक क्विज़ कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए संगठन के सोमेश्वर दा ने बताया कि आज खेल कूद पर आधारित एक क्विज़ कंपटीशन का आयोजन किया गया। उनकी संस्था की तरफ से इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि प्लेयर्स वेलफेयर एसोसिएशन पूर्व खिलाड़ियों का एक संगठन है जो 2001 में बना था। तब से लेकर अब तक इस संगठन की तरफ से खिलाड़ियों और खेल कूद की बेहतरी के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाते रहते हैं। आज इस क्विज़ कंपटीशन का आयोजन किया गया। इसके ज़रिए खेलकूद पर सवाल पूछे गए जिससे कि नई पीढ़ी पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद से भी जुड़े। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए खेलकूद अति आवश्यक है। इससे शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। वही कार्यक्रम में शिरकत करते हुए आसनसोल नगर निगम के MMIC गुरदास चैटर्जी ने कहा कि बच्चों में खेलकूद के प्रति रुझान पैदा करने के लिए इस तरह के आयोजन अति आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक मजबूत समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है तो बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद के प्रति भी रुचि पैदा करनी ज़रूरी है और प्लेयर्स वेलफेयर एसोसिएशन यही काम बाखूबी कर रहा है। প্রত্যেকবার এই ব্যবস্থাপনা করা হয় যে যাতে স্টুডেন্টরা আরো বেশি মেধাবী হতে পারে। তাই আজকের দিনে এই কোশ্চেন অ্যান্সার এই পর্বে আপনারা সবাই উপস্থিত হয়েছেন, ছোট ছোট বাচ্চারা উপস্থিত হয়েছে। সবাইকে আন্তরিক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানাই। সামনে শারদ উৎসব, তাই বেশি কথা না বলে প্রোগ্রাম শুরু যে প্রক্রিয়া চলছিল সেটা কন্টিনিউ করার জন্য অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ। আজকে আপনাদের পক্ষ থেকে কী করা হচ্ছে? আমরা এটা মূলত প্লেয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন থেকে অর্গানাইজ করে একটা আমাদের যে ছেলেমেয়েরা আছে, ছাত্রছাত্রী, তাদেরকে মানসিকভাবে খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্ত করার জন্য আমরা এটা স্পোর্টসের ওপরে, গেমস অ্যান্ড স্পোর্টসের উপরে কুইজটা রেখেছি। আমরা চাই যে আমাদের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো করুক, তার সঙ্গে সঙ্গে তারা যেন খেলাধুলোর সঙ্গেও মানসিকভাবে যুক্ত হয়, কারণ খেলাধুলো না করলে মানসিক বিকাশ ঘটে না। সেই জন্য প্লেয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এটা মূলত প্রাক্তন খেলোয়াড়দের একটি সংগঠন।
যা আসানসোলের বুকে 2001 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেখতে দেখতে আমরা আজ 23-24 বছর পেরিয়ে চলে এলাম। আমরা চাই আমাদের আসানসোলের সমস্ত ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো করুক, খেলাধুলোর সঙ্গে মানসিকভাবে যুক্ত হোক এবং তার সঙ্গে তারা পড়াশুনোটাও চালুক। পড়াশুনো করুক, কিন্তু খেলাধুলো না করলে মানসিক বিকাশ ঘটে না। সেই জন্য আমরা চেষ্টা করছি আমাদের ছেলেমেয়েদের মানসিক বিকাশ ঘটানোর জন্য প্লেয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এই প্রচেষ্টাটা চালিয়ে যাচ্ছে। আপনার পরিচয়? আমার নাম সোমেশ্বর দা, আমি প্লেয়ার্স ওয়েলফেয়ার एसोसिएशन जॉइंट सेक्रेटरी। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর ও নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলব না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।